Hello students, today we are going to discuss 1D graph generator. First of all, let us know what is 1D graph generator. It is a device, it is a type of generator which is used to produce very high voltage of the order of 10 to the power 6 volt, that is of the order of million volts, especially used in experimental and research work of nuclear physics. एक्चुअली न्यूक्लियर फिजिक्स में हमको चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना होता है, एनर्जाइज करना होता है, और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू QV। जब ये वोल्टेज हाई होगा, ये बड़ा वोल्टेज होगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बड़ी होगी। इसलिए ये 1D ग्राफ जनरेटर हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज करते हैं। नाउ कम टू इट्स थियरी और प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग थियरी। इट वर्क्स ऑन फॉलोइंग 2 पॉइंट्स। Action of sharp points. First point is action of sharp point. Action of sharp points. You know, sigma is equal to Q upon A. That if the charge given to a spherical surface, then you know the surface area of sphere is 4 pi r square. Means by reducing this radius of curvature, we can increase the surface charge density. If the points becomes sharp, then what will happen? In this case, radius will be very small. And if radius of curvature will be very small, surface charge density will be very high. Means at these points, charge density, surface charge density will be very high. And due to this charge density, you know, the electric field just outside the surface of charged conductor is sigma upon epsilon. Since surface charge density is very high, so electric field will be very high. Means this start ionizing the air molecules, means leakage takes place, and this leakage is called corona leakage, and this action is called action of sharp points. Means कहीं भी आपको इस तरह के sharp points मिलेंगे और आप बॉडी को चार्ज करोगे तो उन पॉइंट से चार्ज का लीकेज शुरू हो जाएगा, चार्ज की डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। ये एक प्रिंसिपल है। सेकेंड पॉइंट इज चार्ज गिवन टू अ hollow conductor get uniformly distributed over its surface. आप देखें, हमने 2 कंडक्टर्स लिए, 2 concentric spherical conductors लिए हुए हैं. I am supposing that the charge on this sphere is Q and charge on bigger sphere is capital Q. This is A and that one is B. Now what will happen to the potential of B? Potential of B is equal to इसका जो पोटेंशियल होगा वो इसकी रेडियस हमने स्मॉल आर एच कर ली और इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर। पोटेंशियल ऑफ दिस स्मॉलर स्फीयर विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर का पोटेंशियल तो यहाँ पे होगा ही, इसके अंदर का बड़े वाले स्फीयर Q अपॉन R, इसके सरफेस पे भी होगा और इसके अंदर भी होगा, यानी यहाँ पे भी होगा, और इसका अपना जो पोटेंशियल होगा यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R प्लस स्मॉल q अपॉन
नाउ व्हाट अबाउट द पोटेंशियल ऑफ ए? इसका पोटेंशियल कितना होगा? इसका पोटेंशियल अपना पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, और इसके कारण भी होगा, इसके आउटसाइड के पोटेंशियल होगा इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा q अपॉन, सॉरी ये डिस्टेंस इसका है कैपिटल R, तो इसलिए ये अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल q अपॉन। Now what will happen to the potential VB minus VA? VB minus VA. This minus this. This will be cancelled with this, and you are left with 1/4 pi epsilon naught q upon 4 pi epsilon naught 1 upon small r minus 1 upon. What you are saying? You are saying that the potential difference between inner sphere and outer sphere is independent of this charge. Whatever charge is lying over the outer sphere, it doesn't matter about the potential difference between these two spheres. Means charge always flows from inner sphere to outer sphere, because you know if q is positive, then this will be positive. Charge always flows from inner sphere to outer sphere. This is the second principle. Means charge given to a hollow conductor always get distributed over its surface. किसी भी hollow conductor को जब हम चार्ज देते हैं तो वह उसके surface पे uniformly distribute करता है. This is the second principle. Now come to construction. It consists of a large metallic sphere. This is a metallic sphere, large metallic sphere, as supported over two insulating pillars A and B. इसको दो इंसुलेटिंग पिलर्स से सपोर्ट किया गया है. There are two pulleys P1 and P2 over which a rubber or nylon belt is being rotated with the help of an electric motor. This is an electric motor. This can be rotated with the help of motor. Now there are two metallic combs C1 and C2. Actually this is spray comb, and this is the collecting comb. ये कॉम्ब जो है इस पे नुकीले पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं. तो जब हाई वोल्टेज रेक्टिफायर से इसका कनेक्शन करते हैं तो इस पे चार्ज डेवलप होता है. और जब चार्ज वर्किंग एक्सप्लेन कर रहे हैं हम इसका, जैसे ही चार्ज डेवलप होता है मोटर ऑन करते हैं, ये एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट से ये चार्ज लीक करके इस बेल्ट पे आ जाता है, और ये बेल्ट इसको ट्रांसपोर्ट करता है. जैसे ही ये चार्ज यहाँ पे आता है बाय इंडक्शन, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और यहाँ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. आपको पता है कि ये शार्प पॉइंट्स हैं, तो फिर एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स के कारण, ड्यू टू एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, ये चार्ज लीक करता है, और जब नेगेटिव चार्ज लीक करता है तो पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देता है, और यह पॉजिटिव चार्ज फ्री हो जाता है, और फ्री होकर इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट. फिर ये न्यूट्रल बेल्ट मूव करते हुए यहाँ आता है, और फिर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज को ये कैरी करता है. पॉजिटिव चार्ज जैसे ही यहाँ पे आता है बाय इंडक्शन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और फिर कोरोना
लीकेज के कारण ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देता है और ये पॉजिटिव चार्ज फ्री होकर के इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस तरह से आपको पता है कि इसका पोटेंशियल 1/4πε0 Q अपान ये जब इंक्रीज आप कर रहे हो तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, और जब इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब इससे भी आयोनाइजेशन शुरू हो जाता है, ये एयर मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करने लगता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अराउंड 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीथेन या नाइट्रोजन जैसी गैस इनक्लोज करके एक स्टील चैम्बर से इसको इनक्लोज कर देते हैं, जिसको हमने आर्क कनेक्शन किया, जिससे इसमें चार्ज का लीकेज भी हो तो ये ग्राउंड से न्यूट्रलाइज कर देते। इस तरह से इसका वोल्टेज और ज्यादा हम बढ़ा पाते हैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलियन वोल्ट। अब जब इसका वोल्टेज मिलियन वोल्ट के ऑर्डर में हो गया तो यहां पे हम रखते हैं आयन सोर्स। आयन सोर्स को जब आप यहां पे रखोगे तो इसका वोल्टेज है कैपिटल V, और यहां से जो आयंस निकलेंगे, जो चार्ज पार्टिकल्स निकलेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी QV। इस एनर्जी से आप चाहो तो टारगेट को हिट कर सकते हो और आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन या न्यूक्लियर फिजिक्स में जो भी एक्सपेरिमेंटल वर्क करना होगा हम कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट 1D ग्राफ। थैंक्स।